Never mind forgiving others or outsiders. We're forgiving our own self for the thoughts that we adapted unconsciously, and we're bringing it to our consciousness and just asking about forgiveness. And like the other person was just saying, I also feel that when I say I, this is the same I that everyone else is I. So I also firmly feel and believe that we're all so connected. And it gives you a lot of joy too by keeping that kind of feeling in the forefront. So basically, forgiving means clearing our own thoughts, our own aura, our own energy, and you start to see reflection outside in the world too. Yeah, काफी हद तक क्लोज है, but still अभी भी और किसी को अब मुझे बताइए कि when you say Ho'oponopono, tell me how many people are saying Ho'oponopono every day, but miraculous manifestation अभी तक नहीं हुआ है. There must be some people कि Ho'oponopono प्रेयर बोल तो रहे हैं, लेकिन एक होता है ना, हर चीज मैनिफेस्ट होती जा रही है. क्या किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि मैम प्रेयर तो कर रहे हैं? Sonia, I think you are first time in my webinar. For me, yes, I am. Yes, your first time. So how you got to know yes. about me? Welcome to my webinar. Oh, thank you. I actually wanted to have a personal session with you. So what happened is Synchro Shakti, whatever her name is, I forgot her name now. Yeah, Kartika. Yeah. Kartika, I started watching her during COVID last year. And then I saw your interview on her. So first I thought maybe you were her client or you were learning from her. But then I got drawn to your honesty and energy. Like you're so genuine, and that connected really well with me because I do same thing with my business, and people compliment me a lot that you're so honest and they feel they can trust me from the first moment. So with you, I felt that, and I'm so happy because I haven't taken membership of any other life coach or people who teaching all kind of stuff. I was drawn to your genuineness, and I'm so happy. And it's only been maybe I think less than 2 weeks. I may had come across your video in the past too, and I am in Canada, so this is actually my daytime, and I'm glad you're doing it at this time because it works good for me. So yes, this is how I got to know you. I saw you on her show, and then I watched your videos, and then you know, you're so simple. You come on the screen with like even no makeup, no nothing. I'm like, you know, she's such a genuine person, and you're so giving, and I'm so happy, and I look forward to having a one-to-one personal session with you. Okay, thank you. Cool. Yeah, thank you so much, and thank you. This is your first webinar, and I would suggest you learn more yes. Because this is the point where we all have to notice this key. See, innocence always works, right? You just said that yes. You're honest with your client, you're innocent, right? You're so pure. You will get yes. Reflection from your clients for sure. So this is the biggest secret. But now I will talk about the Ho'oponopono prayer. किसी को नहीं पता. इसीलिए मैं बोलती हूँ knowledge लो, read more books so that you can understand. तो हुआ क्या? If you remember 10 years, husband छोड़ के चले गए. I was in a hatred, you know, always hatred. हाय दिस इज अंजना. 40 से 40 करोड़ लॉकडाउन के वोचालिज्म के ऑथर, जिसका इंग्लिश वर्जन है 40 मिलियन विच इज अवेलेबल ऑन अमेजोन. और अब मेरी एक और बुक है, ये भी अमेजोन पे अवेलेबल है, करोड़ों की बातें. सो 30th को मैंने एक वेबिनार लिया था जो हमारा मेगा इवेंट था, शब्दों की बातें वेबिनार. 2019 से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही हूँ. बहुत सारी टूल्स एंड टेक्निक्स मैंने अप्लाई की है और ऑब्वियसली रिजल्ट्स मुझे मिलते गए, लेकिन कभी ये समझ में नहीं आता था कि ये काम ज़्यादा करता है कि ये काम ज़्यादा करता है. 555 टेक्निक वर्क करती है, या फिर ग्रैटिट्यूड वॉक से मेरी लाइफ में मिरेकल्स हुआ, या फिर मेडिटेशन उसका मतलब रिजल्ट है मेरे मैनिफेस्टेशन का. तो कुछ समझ में नहीं आता था. बट येस, 2019 की जर्नी से जब से मैंने ये प्रैक्टिसेस शुरू की, बहुत इवॉल्व हुई हूँ मैं इन टर्म्स ऑफ नॉलेज. बहुत रीडिंग की है मैंने, और टाइम टू टाइम मैंने अपनी हर जर्नी को, हर लर्निंग को आपके साथ शेयर किया है. सो थोड़ी ही दिन पहले की बात है, मैं कुछ रिसर्च कर रही थी, कुछ देख रही थी, एंड सडनली मुझे बहुत कनेक्टिंग डॉट्स मिले और मुझे लगा ओ माय गॉड, दिस इज द सीक्रेट ऑफ माय मैनिफेस्टेशन. एंड देन मैंने काफ़ी सारी डॉट कनेक्ट की और तब समझ में आया कि ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है मेरे मैनिफेस्टेशन का. आप सबको पता है कि मैंने अब्राहम एक्स को फॉलो किया है. अभी मैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा को काफ़ी पढ़ती हूँ. सो बहुत सारी ब्रेन एक्टिविटीज़ के बारे में रिसर्च करती हूँ कि
किसने क्या क्या कहा है, कौन सी चीज़, तो ये एनालिसिस माइंड बहुत कुछ जानना चाहता है जिससे हम एक क्लियर पिक्चर हमें मिल पाए, क्या काम करता है क्या नहीं करता है, कुछ भी काम करता है तो क्यों करता है। जितनी क्लैरिटी और क्लियर विजन के साथ हम आगे बढ़ते हैं उतना आसान होता है हमारी लाइफ में बिलीव करना। सो कई बार कैसे होता है ना, लॉजिकल माइंड साइंस में बिलीव कर लेता है, मैजिक में बिलीव नहीं करता। और कई बार इनोसेंट माइंड होता है, इनोसेंट दिल होता है, तो जिसने जो बोला है उस पर बिलीव कर लेते हैं। किसी ने कहा मैजिक हो जाएगा, मिरेकल हो जाएगा, हम वो मान लेते हैं। और इस तरह से जिसको जो सूट करता है वो उसको आगे करता रहता है। लेकिन मेरा ये फ़र्ज़ है एज अ लाइफ कोच कि मैं आपको जो भी मेरी जर्नी में मेरी जो एनालिसिस निकलती है, जो मुझे समझ में आता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। किसी ना किसी को शायद उस रिसर्च से, उस अंडरस्टैंडिंग से शायद फ़ायदा हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं सही हूँ, बट कुछ अंडरस्टैंडिंग मुझे समझ में आई। और जब मैंने उसको एनालिसिस की, अपनी लाइफ से कनेक्ट किया, डॉट्स कनेक्ट की, तो समझ में आया कि ओ दिस इज़ वर्किंग। एंड देन मैंने काफ़ी सारा कुछ गूगल किया। इस वीडियो के बाद आप भी गूगल करें प्लीज़, आंख बंद करके मेरी बात पे भरोसा नहीं करें। लेकिन एक और नज़रिया मैं आपको देना चाहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन ऐसे भी होते हैं। सो गाइज, मैंने देखा 2019 से जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की, मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी जल्दी हो रहे थे। शायद उसी का रिजल्ट है कि आज मैं आप सबके साथ हूँ और 30,000 से भी बड़ा मेरा परिवार है। और जब मैं वेबिनार करती हूँ तो काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स आते हैं यही जानने के लिए कि क्या है मेरी जर्नी, क्या है मेरी अंडरस्टैंडिंग और क्या है मेरी लर्निंग। सो इस बार के भी शब्दों की बातों में मैंने उस वेबिनार में शेयर किया था ये सीक्रेट, बट मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि जब मैंने वेबिनार में देयर वर ऑलमोस्ट 450 पीपल, काफ़ी लोगों से पूछा था लेकिन कोई इसका सही जवाब नहीं दे पाया था। तो मुझे लगा कि हो सकता है कईयों को ये जवाब पता हो, बट हो सकता है कईयों को नहीं पता हो। तो जिनको नहीं पता है उनके लिए ये वीडियो है कि एक पर्सपेक्टिव ये भी है, एक सीक्रेट ये भी है। सो गाइज, मैंने ये पूछा था कि व्हाट इज द सीक्रेट या व्हाट इज द साइंस बिहाइंड होप ऑन अपॉन अ प्रेयर। क्योंकि कई लोग हैं जो होप ऑन अपॉन अ प्रेयर करते हैं, कर रहे हैं, करते जा रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में ये प्रेयर बहुत फेमस है और लोगों को बहुत रिजल्ट्स मिले हैं। ये सिर्फ फ्रेजेस हैं कि इनके पीछे कोई रीज़न होता है। वाई जस्ट आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू कह के इतना फ़ायदा हो जाता है। मेरी ज़िंदगी खुद वो 3 दिन के रिपीटेशन से बदली जब मैंने रिसाइट किया होपन अपॉन अ प्रेयर 3 दिन अपने घर में, और उसके बाद मैजिकल रिजल्ट्स थे। बट मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि ओके होपन अपॉन अ प्रेयर वर्क करता है, दुनिया के लिए काम कर रहा है, मेरे लिए भी कर गया, दैट्स इट। बस मैं उतना ही मैजिक और उतना ही मिराकल समझ रही थी। डीप अंडरस्टैंडिंग मुझे थोड़े दिन पहले मिली है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, दैट इज फॉरगिवनेस। सो फॉरगिवनेस के ऊपर मैं ये आपसे वीडियो बनाना चाहती हूँ कि फॉरगिवनेस में कितना पावर है। फॉरगिवनेस इज मैनिफेस्टेशन। सो मेडिटेशन जो होता है, अगर आप फॉरगिवनेस को पकड़ के मेडिटेशन करते हैं तो मैनिफेस्टेशन होगा ही होगा। ये चीज़ मुझे नज़र आई जब मैंने बहुत सारी कनेक्टिंग डॉट्स की। सो 2019 का मुझे याद है कि 10 साल के स्ट्रगल में मैंने कभी भी अपने एक्स हस्बैंड को माफ़ नहीं किया था। मैं पूरा टाइम अंदर ही अंदर परेशान होती थी, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, उसने मेरे साथ बुरा किया, 10 साल तक मैं उससे परेशान होती रही। फिर कुछ ऐसा हुआ कि हम वापस से टच में आए मेरे एक्स हस्बैंड के, और हमने हाय हेलो ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करने शुरू किए। और जब मैंने 40 से 40 करोड़ बुक लिखी तब मैंने उनको एक मैसेज किया कि आई जस्ट रोट अ बुक एंड ही सेड कंग्रेचुलेशंस। जब भी आप कभी किसी के साथ अपने अचीवमेंट शेयर कर रहे होते हैं, इसका मतलब आपने उसको माफ़ कर दिया, तभी आप कर पा रहे हैं। नहीं तो आप हेट्रेड में कभी भी अपनी खुशियाँ जाके उस इंसान को नहीं बताएंगे। एंड मैंने देखा कि एक्चुअली बुक लिखने के बाद से मेरे ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आए। भले ही वो स्लोली थे लेकिन आ रहे थे। और अब जाके जब मैं देखती हूँ कि पूरी तरह से जब मैंने उनको माफ़ कर दिया तो मैं देख रही हूँ कि मेरी लाइफ की ग्रोथ भी बढ़ती जा रही है। और रिसेंटली मुझे पता पड़ा जब मैंने बहुत रिसर्च किया कि फॉरगिवनेस कईयों को नहीं पता है कि होपोनोपोनो प्रेयर वर्क क्यों करता है, क्यों मैनिफेस्टेशन हो जाते हैं। जब भी मैंने काफ़ी लोगों से पूछा कि ऐसा क्या है, कईयों ने कहा कि एनर्जी स्टक होती है, हमारे कार्मिक क्लेंजिंग हो जाती है, ये हो जाता है वो हो जाता है, बट साइंटिफिकली कोई नहीं समझा पाया।
कि एक तरफ से तो हम अपने आप को क्लियर कर रहे हैं, मगर हम्म दूसरी साइड से हम साथ साथ, क्योंकि हम एक और एनर्जी जो हम्म नेगेटिव है वो हमने अपने अंदर भर के रखी हुई है, हम्म। वो भी बढ़ती जा रही है, बिकॉज हमें उसके लिए हेटेड वो थॉट तो है ही है ना आपके माइंड में। आपने एक तरफ से क्लियर किया बट दूसरी तरफ से वो भर ही रहा है, मतलब वो बार बार आपको माइंड में वो थॉट आ रही है उस इंसान को लेकर या उस सिचुएशन को लेकर। तो इस दैट्स व्हाट आई फील, मतलब ओके, बाकी आप। हाँ जी। कूल। अब मैं समझाती हूँ। सबसे मैंने पूछ लिया और मुझे पता है कि ये कोई नहीं बताएगा, और यूट्यूब पे तो बिल्कुल नहीं बताएगा, इतने यूट्यूबर से कोई नहीं बताने वाला। अगर यहाँ पे कोई लाइफ कोचेस है और यूट्यूबर्स है, अब वो वीडियो डाल देंगे, है ना। सो लेट मी टेल यू समथिंग। हम एक तरफ बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कईयों को दिखाई नहीं देता। हम बोलते हैं वॉर्टेक्स, वॉर्टेक्स किसी को दिखाई नहीं देता है। सो देयर, जब दिखाई नहीं देती कोई चीज़ तो हमारा साइंटिफिक माइंड है उसको मानने को तैयार नहीं होता, और उसकी वजह से कई लोगों को वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाते जो लॉजिकल माइंड होते हैं उन्हें। जब मैंने देखा कि ओके फॉरगिवनेस, सो फॉरगिवनेस से होता क्या है, ये जब मैंने जाना तो एक बात बताती हूँ जो वाकई में सीक्रेट है, या कई लोगों ने अगर पढ़ रखा है तो फिर मैं चाहूंगी कि उनकी भी वो अंडरस्टैंडिंग को इस वीडियो में कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें कि उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी या ये नॉलेज उन्हें कहाँ से मिला, सो दैट हम ये नॉलेज को कईयों के साथ शेयर कर पाए। वाई फॉरगिवनेस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैनिफेस्टेशन फॉरगिवनेस से ही होते हैं। अगर हम गीता की बात करें, हमारे शास्त्रों की बात करें, हमेशा कहा गया है कि बोझ लेके मत चलिए। मैंने खुद ने 40 से 40 करोड़ बुक में कहा है कि दिल पे और सर पे कभी बोझ रख के हम चढ़ाइयाँ नहीं चढ़ सकते। दिल पे बोझ का मतलब ही होता है कि किसने हमारे साथ क्या किया है। जब हम ये सारी बातें अपने दिल में और दिमाग में रख के चलते हैं तो हम ऊंचाइयाँ नहीं चढ़ सकते। गीता में भी कहा गया जो हो गया उसे बीती ताही पिसार दे, मतलब जो हो गया उसे भूल जाइए। तो ये अगर शास्त्र कह रहे हैं, हमारे उपनिषद कह रहे हैं, तो हो सकता है वो हमें साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाए माफ़ी को, कि माफ़ी क्यों ज़रूरी है, या जो हो गया उसके बारे में ना सोचा जाए, हम उसे माफ़ कर दें, वो साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और इसीलिए हम ह्यूमन माइंड किसी को माफ़ करने को तैयार नहीं होते। नहीं, उसने हमारे साथ बुरा किया है, हम उसे कैसे माफ़ कर सकते हैं, उसकी गलती माफ़ी लायक है ही नहीं, अरे मैं उसे माफ़ कर ही नहीं पाती हूँ। और लेकिन हम ये नहीं देख पाते, हम वो नफरत की उसमें आग में या हेट्रेड में या गुस्से में हम अपने आप को जला रहे होते हैं। मैनिफेस्टेशन तो दूर की बात, हमारी ज़िंदगी में कभी भी तरक्की भी नहीं होती है और स्टडी हमारी ज़िंदगी भी नहीं चलती है। मैं खुद जब गुस्से की आग में चल रही थी, 10 सालों में दिमाग में दिल में गुस्सा था, ट्रस्ट मी, अच्छा काम करती थी फिर भी एक सुकून नहीं था ज़िंदगी में। पैसे की फ्रिक्वेंसी अच्छी नहीं थी। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स चल ही रहे थे, स्ट्रगल चल ही रहा था, कभी स्टडी लाइफ नहीं हुई, कभी समझ में नहीं आया कि क्यों। अब समझ में आता है कि क्या जब मैंने अपने एक्स हस्बैंड को माफ़ करना शुरू किया उसके बाद के मैनिफेस्टेशन है। और यस, मैंने एक्चुअली देखा कि जब से मैंने उनको माफ़ किया और जब मैंने देखा कि मेरे दिल में अभी किसी के लिए कुछ भी ग्रजेस नहीं बचे हुए हैं और एक्चुअली मेरी ज़िंदगी में मिराक्युलसली मैनिफेस्टेशन हो रहे हैं, तो ये मिराक्युलसली नहीं होते हैं गाइस। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप किसी को फॉरगिव कर रहे होते हैं तब आपका जो ब्रेन है वो अल्फा स्टेट में चला जाता है और अल्फा स्टेट से ही मैनिफेस्टेशन होते हैं। बड़े बुजुर्गों ने कहा है माफ़ कर दो, शायद उन्होंने इसीलिए कहा था कि माफ़ करने से आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, आपके एंग्जाइटी ख़त्म हो जाती है। जैसे जैसे आप माफ़ी वाले इमोशंस में जाते हैं, काफ़ी सारे जो नेगेटिव केमिकल्स, नेगेटिव हार्मोन्स या नेगेटिव इमोशंस है वो अपने आप धीरे धीरे सबसाइड होते ही होते हैं। और अगर जैसे कि मैंने डॉक्टर जो डिस्पेंजा से जितना भी पढ़ा है और जितना भी मैंने रिसर्च किया उसके हिसाब से मुझे समझ में आया, व्हेन यू आर इन अ फॉरगिवनेस स्टेट, जब आप किसी को माफ़ कर रहे होते हैं, 15 मिनट्स अगर आप फॉरगिवनेस मोड में चले जाएं और किसी एक व्यक्ति को पकड़ के जस्ट उनको याद करके, विजुलाइज करके, आप उन्होंने आपके साथ जो भी किया है उसको अगर आप पहले याद कर लें कि कितना गुस्सा आ रहा था, उसने ऐसा क्यों किया, एंड देन उसका पर्सपेक्टिव चेंज करें कि ओके शायद उसको समझ नहीं थी, शायद वो ना समझ था या कोई और सर्कमस्टांसेस है जिसकी वजह से। जब ये पूरी प्रोसेस चल रही होती है 10 to 15 मिनट, जब आप किसी एक व्यक्ति को लेकर उस पर फॉरगिवनेस के मेडिटेशन कर रहे होते हैं, आपकी ब्रेन वेव्स जो होती हैं वो अल्फा स्टेट में चली जाती हैं
और अल्फा स्टेट में ही मैनिफेस्टेशन होते हैं, अल्फा स्टेट में ही माइंड इनटू मैटर कन्वर्ट हो जाता है। जो भी आपके दिमाग में चल रहा होता है वो मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये जब मुझे साइंस समझ में आया तब जाके मैंने उसे होपोनोपोनो प्रेयर से कनेक्ट किया कि ओ इसीलिए शायद होपोनोपोनो प्रेयर वर्क करती है, क्योंकि उसमें है आई एम सॉरी यानी फॉरगिवनेस, प्लीज फॉरगिव मी, फॉरगिवनेस, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड एंड कंपैशन, आई लव यू। आई थिंक इसी जब आप इसको बार 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 रिसाइट कर रहे होते हैं, आपका ब्रेन अल्फा स्टेट में जा रहा होता है, और जब अल्फा स्टेट में जाता है तो मैनिफेस्टेशन हो जाते हैं। सो मेडिटेशन फॉर मैनिफेस्टेशन इज फॉरगिवनेस गाइस। सो अगर हमको ऐसा लगता है कि हम उसे क्यों माफ़ करें, तो हमें किसी को भी माफ़ करना है, उसके लिए नहीं करना है। ये तो हर बड़े बूढ़े भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं कि माफ़ी हमें किसी को करना है तो हमें उसके लिए नहीं करना है कि हम उसको माफ़ करें, हमें अपनी ग्रोथ के लिए किसी को भी माफ़ करना है जिससे हम हमारा नुकसान नहीं कर पाएँ। हम स्ट्रेस के केमिकल्स, हार्मोन्स अपनी बॉडी को ना दे पाएँ, जो कि एक डिजीज़ के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। माफ़ी हमें इसलिए चाहिए कि माफ़ी के साथ बहुत सारे अच्छे केमिकल्स भी प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में, कूल एंड काम ब्रेन वेव्स होती जाती हैं और वो अल्फा स्टेट में जाती हैं। अल्फा स्टेट के में जाते समय जो भी आप सोच रहे होते हैं वो मैनिफेस्टेशन हो जाते हैं। किसी ने फिर मुझसे मेरे वेबिनार में सवाल किया कि मैम होपोनोपोनो प्रेयर जिस तरह से डॉक्टर जो विताले ने प्रिजनर्स पे किया था वो कैसे वर्क किया। तभी फिर मेरा वही कॉन्सेप्ट था कि जब वो, अगर उनके दिमाग में ये था डॉक्टर जो विताले के कि मैं इन सबको ठीक करना चाहता हूँ, तो डिज़ायर क्या थी, ठीक करना चाहता हूँ। और क्या किया उन्होंने, एक एक फाइल को लेकर उस पर आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू बोलते गए बोलते गए बोलते गए। कहीं ना कहीं उनका ब्रेन भी अल्फा स्टेट में जा रहा था और उनके ब्रेन में डिज़ायर थी कि सब ठीक हो जाए, वो सब ठीक हो गए। सो दैट इज़ द मेडिटेशन, दैट इज़ द फॉरगिवनेस स्टेट में आके जब आप कुछ भी सोचते हैं, अल्फा स्टेट में आपका ब्रेन चला जाता है और वो ब्रेन में अल्फा स्टेट में जाने की वजह से आपके मैनिफेस्टेशन हो जाते हैं। सो अगर जैसे बड़ों ने कहा है माफ़ करना है खुद के लिए, तो यस, अब माफ़ करने के प्रोसेस को आप थोड़ा सा सेल्फिश मोटिव ले लीजिए कि यार मेरे ब्रेन को मुझे अल्फा स्टेट में ले जाना है और चलो हम किसी एक पर्सन को पकड़ के माफ़ कर देते हैं। एंड इट शुड बी अ रेगुलर प्रैक्टिस। जब मुझे कहा गया ये करने के लिए तो मैंने कहा यार मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा है ही नहीं जिसे मुझे माफ़ करना है, मैंने तो सबको माफ़ कर दिया। लेकिन मुझे पता पड़ा कि नहीं, ये मेडिटेशन प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनिफेस्टेशन। तो फिर मुझे सोचना पड़ा मैं किसको माफ़ करूँ, किसको माफ़, क्योंकि अब मेरे लिए वो लोग ढूंढना ज़रूरी थे कि किसको पकड़ के मैं माफ़ी वाले मेडिटेशन में जाऊँ और जिससे मेरी ब्रेन वेव्स अल्फा स्टेट में जाएं और जिससे मेरे मैनिफेस्टेशन हो जाए। तो दूर दूर तक मैं स्कूल कॉलेज कब किसने क्या कहा, और हो सकता है मुझे कुछ मतलब ढूंढ ढूंढ के अब मैं सोच रही हूँ एक एक इंसान पकड़े, शायद कोई ऐसा बच्चा हो जिस पे मुझे गुस्सा आ रहा हो, मैं उसे माफ़ कर दूँ। क्योंकि अब माफ़ करना किसी और के लिए नहीं, ये मेरा सेल्फिश मोटिव बन गया है कि अगर 15 डेज मुझे फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है तो मुझे कोई एक बंदा ऐसा चाहिए जिस पे मुझे कहीं ना कहीं कोई नाराज़गी है और मैं उसे याद करूं, मैं उस मेडिटेटिव स्टेट में जाऊं जिससे मैं अल्फा स्टेट में जाऊं और मैं मैनिफेस्टेशन कर पाऊं। सो मैं ये कहना चाहूँगी गाइस कि ये मेडिटेशन आपको मैनिफेस्टेशन तक लेके जा सकता है। सो दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फॉरगिवनेस। और मैंने काफ़ी सर्च किया, आप भी सर्च करें कि फॉरगिवनेस के स्टेट में या फॉरगिवनेस मोड में या फॉरगिवनेस के जब इमोशंस यहाँ पे चल रहे होते हैं, आपका ब्रेन अल्फा स्टेट में जाता है और अल्फा स्टेट में मैनिफेस्टेशन होते हैं। सो दिस इज माई अपडेटेड नॉलेज जो मुझे अभी अभी मिला, विच आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू गाइज। कमेंट सेक्शन में बताइए क्या इस तरह का आपको नॉलेज था, अगर था तो कहाँ से मिला, और शेयर कर सकते हैं तो हम और नॉलेज उस पर लेना पसंद करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो होपोनोपोनो प्रेयर है वो शायद इसी वजह से वो 4 फ्रेसेस में कर दी गई कि जिससे हर वो कोई व्यक्ति अल्फा स्टेट में चला जाए और उसके मैनिफेस्टेशन हो जाए, एंड दैट प्रेयर इज वर्किंग मैजिकली फॉर एवरीवन। सो दिस इज़ फॉर टुडे एंड आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है और इस पे और रिसर्च कीजिए, उस पर और स्टडी कीजिए, आंख बंद करके मेरे ऊपर भरोसा मत कीजिए, लेकिन अपना नॉलेज आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आप
एक्टिव हैं, तो मैं इस तरह की आगे की रिसर्च इसी सब्जेक्ट पे और लाना पसंद करूंगी आपके साथ। थैंक यू सो मच।